السلام علیکم، میں ہوں محمد شفیق اور آپ سیکھ رہے ہیں پی ایچ پی کی اس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم سیکھیں گے ملٹی ڈائمیشنل ایرے۔ تو آئیے جناب سیکھتے ہیں ملٹی ڈائمیشنل ایرے۔ تو ملٹی ڈائمیشنل کس چیز کو کہتے ہیں جی جناب؟ ملٹی ڈائمیشنل میں ایسا ہوتا ہے کہ ایرے کے اندر جو ہے ایرے یوز کیا جاتا ہے جی جناب۔ مینز اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے جی جناب، ایرے کے اندر ایرے یوز کریں گے جس کو ہم کیا کہیں گے جی جناب، ملٹی ڈائمیشنل ایرے گے۔ مطلب یہی ہے کہ ہم کی بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویڈیو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اوکے جناب، تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں جی جناب، سیم ٹو سیم میں یہی کہہ دیتا ہوں کہ اوکے یہ بھی جو ہے نا، اس کو بھی کمنٹس میں بند کر دیتا ہوں، اس کو جو ہے مجھے بعد میں اس کی ضرورت ہوگی۔ اوکے جناب، کیونکہ میں سیم ٹو سیم جو ہے وہی کیا ویریبل یوز کروں گا جی جناب۔ فار ایگزامپل میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل میرے پاس بکس ہے، اوکے دو بکس کے، اور اس کی میں ملٹی ڈائمینشنل ایرے بنانا چاہتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک جاوا ہے اور ایک ٹیبل بھی لیتا ہوں، میتھمیٹکس کی ٹیبل جو ہوتی ہے۔ اوکے جناب، تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا جی جناب، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس کو میں ہٹا دیتا ہوں۔ اوکے جی جناب، تو میں نے ایک ایرے لیا جی جناب، پھر اس کے اندر جو ہے میں نے کیا کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے صرف دو بکس کے لیے ایرے بنانا چاہتا ہوں، تو اس کے اندر میں لکھ دیتا ہوں جاوا۔ اوکے جناب، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک بک ہے جس کا جو کہ ہوگا کس چیز سے، جاوا سے ہوگا، اور دوسرا بک ہوگا کس چیز سے، فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں میتھمیٹکس کی جو ٹیبل ہوتی ہے اس کے لیے جی جناب۔ تو میرے پاس دو بکس ہے، ایک جاوا ہے اور ایک کیا ہے، ٹیبل ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ملٹی ڈائمینشنل ایرے بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں انڈیکس پر کام کروں گا، تو آئیے جی جناب سیکھتے ہیں کہ انڈیکس ہم کیسے کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ میں نے ایک ایرے لیا ہے، اوکے جناب، پھر اس کے اندر جو ہے میں نے کیا کیا، اب آتے ہیں کہ ہم یوز کریں کس چیز کو، اس کے اندر جو ہے ایک اور ایرے ڈالتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ایرے کے اندر جو ایرے ہوتی ہے اس کو ہم ملٹی ڈائمینشنل ایرے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح میں کرتا ہوں، از ایکول ٹو کا سائن لگاتا ہوں، پھر گریٹر دین کا سائن لگاتا ہوں، اور اس کے اندر اس ایلیمنٹ کے اندر ایک اور ایرے جو ہے وہ یوز کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر میں ایک اور انڈیکس ایرے یوز کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میں کیا کروں گا، فار ایگزامپل میرے پاس جاوا کا ایک بک ہے، اس کے اندر جو ہے پیجز کتنے ہیں، میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے تقریباً پیجز جو ہے 25 ہے، کتنے ہیں، 25 ہو گئے۔ اور پھر میں نے کہا کہ پیجز جو ہے پھر میں نے کہا کہ اس کے اندر پیجز 25 ہو گئی، اور پرائس اس کی ہو گیا، فار ایگزامپل میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس کی پرائس جو ہے 90 ہو گیا۔ کتنا ہو گیا جی جناب، 90 ہو گیا۔ پھر میں اس کو سبجیکٹ دے دیتا ہوں کہ یہ جو ہے کون سے سبجیکٹ ہے، تو میں صرف کمپیوٹر لکھ دیتا ہوں، کس چیز کی، کمپیوٹر لکھ دیتا ہوں کہ یہ کمپیوٹر سبجیکٹ کی ہوگی۔ پھر میں کیا کرتا ہوں جی جناب، اس کو میں نے جو ہے کیا کرنا ہے، یہ بھی لکھ دیا۔ اب آنا یہی ہے کہ ہم نے تو ایک ایلیمنٹ کے اندر ایرے ڈال دیا، اب کیا کرنا ہوگا جی جناب، یہ دوسری والی جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے میں نے کیا کرنا ہے، ایک اور ایرے جو ہے وہ ڈالنا ہے۔ تو یہ تو جاوا کے لیے ہو گئی، اوکے۔ اب اس ٹیبل کے لیے بھی ایک ایرے بنانا ہوگا، تو میں کیا کرتا ہوں، فار ایگزامپل میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اس کو جو ہے میں کاپی کر دیتا ہوں ادھر سے ادھر تک۔ اوکے جناب، کاپی کر دیتا ہوں اور ادھر جو ہے پیسٹ کر دیتا ہوں، کدھر جی جناب، اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو میں جو ہے انٹر کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے اور جو ہے سمجھ آ سکے۔ اوکے، یہ جاوا تک جو ہے میں لا دیتا ہوں۔ اوکے، اس کے بعد میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں، تو میں نے پیسٹ کیا جی جناب۔ تو میں نے بھی کہا کہ ایک ٹیبل ہے، اس کی بھی فار ایگزامپل یہ تو 25 پیجز ہو گئے اور 90 روپیز ہو گئے، تو میں کہتا ہوں کہ اس کی قیمت جو ہے کتنی ہے، فار ایگزامپل میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کی قیمت 80 ہو گئی، کتنی ہو گئی، 80 ہو گئی، اور اس میں کتنے پیجز ہے، 20 پیجز ہے۔ اوکے جناب، اور یہ کس چیز کا سبجیکٹ ہے، پر یہ تو اوپر والا کمپیوٹر کا تھا، اور یہ کس چیز کا ہو گیا، میتھس کا ہو گیا۔ کنٹرول پلس ایس سے میں اسے سیو کر دیتا ہوں۔ اوکے جناب، اور کیا کرتا ہوں، ایسا کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ کنٹرول پلس ایکس، اوکے، اس کو جو ہے اوپر کر دیتا ہوں، پرنٹ آر کی مدد سے اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اوکے جناب، تو پرنٹ آر کی مدد سے جب میں اسے دیکھوں تو یہ کمنٹس لائن میں جو ہے ہٹا دیتا ہوں، کنٹرول پلس ایس سے میں نے اسے سیو کیا۔ اب آتا ہوں کس چیز کی طرف،
इस तरफ आता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ। जी जनाब, तो इसे ने हम क्या कहे जी जनाब, इंडेक्स एरे है। ओके जनाब, तो एक एरे जो है उसमें हमने स्टार्ट किया जावा, एक बुक है, जावा बुक है। ओके जनाब, और इसके अंदर जो है हमने एक और एरे यूज़ किया था जिसको मैंने कहा था कि इंडेक्स एरे होगा। तो जावा ये एक की हो गई, की के अंदर, जावा की के अंदर क्या है जी जनाब, एक एरे स्टार्ट हो गई जिसकी 0 इंडेक्स पर क्या है 25 है, ओके 25 है, फिर 1 इंडेक्स पर क्या है 90 है, और 2 पर कंप्यूटर है। अब सेकंड एलिमेंट पर जब आते हैं, टेबल का बुक है, तो टेबल के बुक जो है वो इसका एरे हमने बनाया था कि वो क्या है 0 इंडेक्स पर क्या है 20 है। ओके जनाब, पेजेस जो मैंने लिखे थे, और प्राइस कितनी होगी 1 पर 80 होगी, और 2 मैथमेटिक्स। तो ये तो सिर्फ प्रिंट आर की मदद से हमने इसको जो है ना शो किया। अब मैं चाहता हूँ ओके जनाब, इसको जो है कमेंट्स में बंद कर देता हूँ और देखता हूँ ये PHP जो है इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये PHP नहीं है, ये जावा है। ओके जनाब, अब इधर क्या लिखता हूँ, जावा लिख देता हूँ। ओके, और इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ, रिमूव करता हूँ। Ctrl+S से मैंने इसे सेव किया। अब देखता हूँ जी जनाब, जी जनाब, अगर हम इसको देख दें, ओके इधर कुछ नोटिस स्ट्रिंग कन्वर्जन एंड ऑनलाइन, ओके, और मेरे मेरे मतलब है को जावा बुक्स। ओके जनाब, अब मैं ऐसा करता हूँ को इसको सिंगल लाइन कमेंट में जो है बंद कर देता हूँ। Ctrl+S से मैंने इसे सेव किया। अब आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या होता है वही सेम टू सेम रिजल्ट जो है वो शो कर देते हैं। तो ओके, एक मरतबा फिर ये बुक्स हो गया, किधर मसला है, जावा। ओके जनाब, जावा हो गया। ओके, एक और मल्टी, ओके जनाब, अब क्या करता हूँ, ये तो मल्टी डायमेंशनल है। ओके जनाब, ये तो मल्टी डायमेंशनल, इसलिए हम एक और जो है क्या करेंगे, एक डायमेंशनल लेंगे। जब डायमेंशनल लेंगे तो इसके अंदर जो है मैं की भी यूज़ करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि 0 कीज़ पर जावा के बुक्स क्या कितनी प्राइस पेजेस है। तो Ctrl+S से मैंने इसे सेव किया। अब आता हूँ जी जनाब, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप देखेंगे 20 होगा, आ गया। अब बात आई समझ में जी जनाब। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, तो जावा के अंदर हमने इंडेक्स यूज़ कर रहे थे, तो ये जीरो जो है इसको जो है आपने क्या करना है, ये मल्टी डायमेंशनल, इसलिए तो मैंने सिंगल डायमेंशनल यूज़ की थी। ये तो मल्टी डायमेंशनल है। अब इधर आप क्या करते हैं, मैंने ये प्रेस तो मैंने मालूम किया। अब मैं पेजेस तो मैंने मालूम किया। अब मैं जो है जावा के जो है क्या करना चाहता हूँ, ये 90 जो है क्या चीज़ है, ये मैंने कहा था कि ये 90 जो है ये प्राइस है। ओके, और ये पेजेस है। तो अब मैं प्राइस बताना चाहता हूँ कि प्राइस कितनी है, तो मैं 2 एंटर कर देता हूँ। ओके जनाब, 2 नहीं 1 एंटर करता हूँ, क्योंकि ये तो इंडेक्स है, तो ये 1 पर होगा, ये 2 पर होगा, और ये 3 पर होगा। तो Ctrl+S से मैं इसे सेव कर देता हूँ, और अब देखता हूँ जी जनाब, जब मैं देखता हूँ तो ये 90 आएगा। इस तरह आप जो है ये भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, सी 1 0 1 2 0 1 2 भी यूज़ कर सकते हैं। ओके जनाब, इंडेक्स में, क्योंकि मैंने इंडेक्स का शुरू किया था। अब मैं टेबल के लिए कर देता हूँ कि टेबल में क्या करना है जी जनाब, टेबल एलिमेंट करके करना होगा जी जनाब। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि टेबल के एलिमेंट जो है इस पर इसके इंडेक्स 1 पर क्या है। ओके जनाब, तो ये तो 80 है, ये भी प्राइस है। तो Ctrl+S से मैं इसे सेव कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अब आपको पता चल जाएगा ये 80 आ गया जी जनाब। इसने प्राइस शो की। और 0 पर जो है क्या है, पेजेस है। क्या है जी जनाब, 0 पर क्या है, Ctrl+S से मैंने इसे सेव किया। अब 0 पर क्या आएगा जी जनाब, 20 आएगा, तो ये इसकी क्या है, प्राइस है। ये तो था जी इंडेक्स एरे था मल्टी डायमेंशनल में। अब हम सीखते हैं जी जनाब मल्टी डायमेंशनल में एरे में एसोसिएट एरे जो होता है इसको हम जानेंगे। तो एसोसिएट एरे के लिए हम क्या करते हैं, ओके जनाब, इसके लिए हम सिंपली ये कर देते हैं कि ये हमने जो पेजेस यूज़ की है। ओके जनाब, ये तो इंडेक्स हो गई, क्या हो गई, ये तो इंडेक्स हो गई। अब इससे पहले जो है ना, आपको क्या करना होगा जी जनाब। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ कौन सी जनाब, पेजेस लिखता हूँ। ओके, जब मैंने पेजेस लिख दिया, अब क्या करना होगा जी जनाब, इससे पहले जो है ना आपको जो है इज इक्वल टू फिर ग्रेटर देन ये लगाना होगा। ओके जनाब, और सेम टू सेम जो है इसके बाद वो 20 जो है ये सिंपल जो है मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो इंडेक्स से। ओके जनाब, तो 20 पाइप आ गई। पेजेस कितने हो गए जी जनाब, 20 पाइप आ गई। अब ये तो प्राइस है, तो अब मैं प्राइस को जो है लिख देता हूँ। ओके जनाब, मैंने प्राइस लिखा। अब करना क्या है जनाब, वही सेम टू सेम वही लिखना है जो कि मैंने पहले लिखा था। ये तो आ गया। अब इसको जो है डबल कोट से सिंगल कोट से जो है हटा देता हूँ, ये भी हो गया। अब ये करना है
जी जनाब, तो अब ये सब्जेक्ट कौन सी है, बुक है तो कौन सी सब्जेक्ट की है? ये तो है मैथमेटिक्स की है। तो अब मैं सॉरी कंप्यूटर की है। तो अब मुझे क्या करना होगा जी जनाब? वही सेम टू सेम क्या करना होगा, अभी कर देता हूँ। ओके, इसके अंदर क्या लिखना होगा जी जनाब? इसके अंदर मुझे क्या लिखना होगा कि यार ये सब्जेक्ट है, कौन सी चीज़ की सब्जेक्ट है। ओके जनाब, बुक्स तो है, कौन सी सब्जेक्ट की है, इज इक्वल टू लिखना है, फिर ग्रेटर देन लिखना है, और मैंने ये लिख दिया। ओके जनाब, अब ये हो गया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इनको जो है मैं कॉपी कर देता हूँ, किस चीज़ को, इसको मैं कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर देता हूँ और इधर जो है पेस्ट कर देता हूँ। किधर जी जनाब? इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। जब इधर मैंने ये पेस्ट किया तो मेरे पास टेबल के एरे में 20 है। इसको जो है आपने क्या करना होगा जी जनाब? इसको 20 करना होगा। ओके, फिर मेरे पास ये क्या है, 80 है। फिर प्राइस कितनी है? प्राइस जो है वो 80 करना है। क्या करना है जी जनाब? 80 करना है। और सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स करना है। क्या करना है? मैथ्स करना है। ओके, क्या करना है जी जनाब? मैथ्स, सिंपली मैथ्स करना है। ये भी हो गया जी जनाब। सब्जेक्ट क्या हो गया? मैथ्स हो गया। अब क्या करना है जी जनाब? इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो हमने लिख दिया ना। ओके, अब ये भी हो गया। अब करना क्या है जी जनाब? अब हम इस तरह करते हैं कि प्रिंट आर की मदद से इसे जो है ना देखते हैं कि क्या होता है। कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसे सेव किया। अब आता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये देखिए जी जनाब, एरे आ गया जी जनाब। एक एरे है एलिमेंट की। ओके, अब मल्टी डायमेंशनल में हम चूंकि की इस्तेमाल करते हैं तो ये जावा आ गया। जावा के अंदर क्या है जी जनाब? पेजेस है। पेजेस कितने हो गए? 25 हो गए। प्राइस कितने हो गए? 90 हो गया। सब्जेक्ट कौन से? कंप्यूटर है। अब टेबल एलिमेंट पर क्या है जी जनाब? एक एरे है जो कि है, पेजेस है 20 है, प्राइस है 80 है, और सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स है। तो ये था क्या था? मल्टी डायमेंशनल था। अब क्या करते हैं जनाब? इसको मैं कमेंट के अंदर बंद कर देता हूँ और देखता हूँ कि एक को कर देता हूँ कंट्रोल किस चीज़ को? कंट्रोल प्लस एस से कि टेबल्स, सॉरी इसको जो है ना ओके इस तरह करता हूँ, कंट्रोल प्लस एस से मैंने सेव किया। अब देखता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ये अनडिफाइंड लाइन देता है। क्यों देता है अब मैं आपको बताता हूँ जी जनाब। अब इस तरह करते हैं कि मैं इधर जो है जावा लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ जी जनाब? जावा लिखता हूँ। फिर इसके बाद जो है ना, हम ये जो है पहले हम इंडेक्स वाले यूज़ किए थे तो ये इंडेक्स लिखा हुआ था। ओके जनाब, अब क्या करना है जी जनाब? इसको इसके अंदर जो है ना पेजेस लिखने हैं। अब की यूज़ करेंगे तो मैं लिखता हूँ कि पेजेस कितने हैं। ओके जनाब, जब मैं पेजेस लिखता हूँ कंट्रोल प्लस एस से मैं सेव कर देता हूँ तो आए देखते ही जनाब, तो ये शो करता है पेजेस कितने हैं? 25 है। ओके जनाब, आप इस तरह अगर टेबल की भी करना चाहते हैं, ओके टेबल बुक एलिमेंट जो है इसकी करना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि टेबल के पेजेस कितने हैं, कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसे सेव किया। अब मैं करता हूँ जी जनाब, ये तो 20 हो गया जी जनाब। तो इसमें हमने क्या किया? मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ किया, इंडेक्स भी यूज़ किया, एसोसिएटिव भी यूज़ किया। साथ ही साथ ये जो है डायमेंशनल जो है ये भी यूज़ की। आप जो है मल्टी डायमेंशनल जब यूज़ करिए तो डायमेंशनल जो है वो भी दो लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है जितने आप लिखना चाहते हैं। ओके जनाब, तो ये था आज का ट्यूटोरियल मल्टी डायमेंशनल एरे के मुताबिक। अगले वीडियो ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए और दुआ में याद करें, और साथ ही साथ हमें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वस्सलाम।